ईश्वर टूटी हुई चीजों का उपयोग बहुत ही सुंदर तरीके से करता है। जैसे बादल टूटते हैं तो बारिश होती है, जैसे बीज फूटता है तो खेत और खलियान उगते हैं। इसी तरह जब हम किसी अपने टूटे हुए से मिले तो ये जान ले कि ईश्वर कुछ तो बहुत ही अच्छा करने के बारे में सोच रहा है। वो कहते हैं ना, जिनके रब से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल सुनहरे होते हैं। I, Mrs. Padma Lohia, on behalf of MPF West Pune, welcome you all for this auspicious occasion of 5th Ashirwad Samaroha of MPF West. On behalf of MPF West, I would like to welcome all the dignitaries present today. I would like to welcome our Guru B.K. Sulubha Didi, the speaker Manish Ji Gupta, and the MFCT President Shri Balkrishna Ji Karwa, the MFCT Secretary Dr. Ashok Ji Ladha, MFCT Treasurer CA Gopal Ji Jaju, as well as all the members of the Governing Council. Also, I would like to welcome all the MPF, other chapters, board of directors, members, and most importantly, each and everyone who has joined us here for this auspicious occasion. We all know MPF stands for Mahesh Professional Forum, and it is a forum for a platform for all the Maheshwari professionals. MPF objective and vision is to achieve the common goal of building values for our members to shape their professional and personal life and take our share of social responsibility towards society at large by sharing of experiences of successful person and become India's most valuable organization. So what makes us gather here today morning is the Ashirwad Samaroha. Sarvesham Swasti Bhavantu, Sarvesham Shanti Bhavantu, Sarvesham Purna Bhavantu, Sarvesham Mangalam Bhavantu. May all be blessed with prosperity, peace, perfection, and with bliss. Objective of this program is to have blessings from spiritual leader to the new BOD and members to have wonderful year ahead. So this virtual gathering is of immense importance while we start another new year of MPF West. So let's start this morning with Ganesh Vandana Nritya by Mrs. Sanjana Karwa. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. Thank you, Sanjana, for this beautiful performance. Now let's join our hands together and seek the blessings of Lord Mahesh with Deep Prajwalan. कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम्
धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। अब भगवान जी को तो याद कर लिया है. अब here's a surprise element. Guess what? Lucky draw and lots of gift. So over to Shravan Ji Biyani to announce today's winners. Congratulations to all the winners, and I'm sure अगला नंबर तो मेरा ही आएगा. Now, may I call our dynamic past president to give us the glimpses of MPF journey for last year 2019-20 by IPP, that is immediate past president CA Dinesh Ji Mundra. जिस मिट्टी में वन वन घूमे रघुनायक श्री राम, जहाँ पार्थ का मोह नाश करने आए घनश्याम, उस माटी को मेरा बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम. जय महेश, जय श्री कृष्णा. It was pleasure to be president of Dynamic Chapter MPF Pune West for 1920. I once again extend my thanks to nomination committee who gave chance to me for this position. The foundation was well led by Sri Nilajji Dhoot in 2016-17 and carried over by Sri Vipulji Navandar in 17-18 and Manojji Bhattar in 18-19 as the president. The quality and standard of the program has taken at new high by the BOD of 2019-20 during my tenure. Each BOD had a free hand to work and implement their ideas at their best. I was there to support them wherever they need me. Membership growth. If you look at it, membership growth in 2016-17 we had 62 members, 93, 120 and 1920 we were 162 members. The members growth continued due to past years program and bonding between members. Positivity and involvement plays a key role. Involvement of each member. Tell me I forget, teach me I remember, involve me and I learn. In line with growth of members, it is extremely important to involve each member in some program. Each member was assigned with one program keeping in mind of their valuable time. Okay, like CA had busy time between July to October. Though there were certain CAs were also there during that period, but this is what we tried at our best, and this was the first year we had assigned each member looking at the growth. Birthdays and anniversary wishes, receiving good wishes on birthdays and anniversary makes one happy. Ajayji Tosniwal and Radheshamji Ladda had come up with great framework to implement these ideas. They not only built the framework but implemented very well, and I am very happy to see it is further improvised by the current team. Very good going. The gift of education, one of the grand program till date in the entire history of MPF, which happened during our tenure. The crossing all the bars, the JOE team led by Shamji Bhutada, along with two chapters, Central and South. Because of togetherness, we not only crossed all the years collection, but also brought the bonding across the memory of first BOD meeting in the white theme. Let me get into flashback and remind the memory, thanking them to support positively. Start with Dr. Kushal Rathi, secretary. He was backbone of BOD. He handled his work so nicely, so perfectly, in spite of having no secretarial past experience. Thank you, Kushal Rathi, for being support during the tenure. Priyanka Heda, the goddess of Lakshmi, treasurer. Her follow-up and prompt attitude, super perfect hisab, super well done. Thank you very much, Priyanka. Past President C. Manoj Bhattar, always guiding, a man of few words. His attitude to help any point in time is amazing. He has absolute command over management skills.
Thank you, Manoj Bhaiya, for supporting throughout the tenure. Engineer Naresh G. Lakhotia, God in detailing, and that's what is all about. A very reliable resource of Pune West, now being president for the 10 years on 2022, the thread is in the right hand. Director of BCL, a die-hard fan of cricket and Avenger. Abhishek started team auctioning first time. It was so super hit that other chapters started asking the format to adopt them. Internal BCL very well organized at Kurukshetra. The arrangement was fabulous. Families would enjoy that. Common BCL tournament was led by our chapter. It will be memory for us. We not only organized the event but also grabbed the winner trophy for male and runner-up trophy for the female. Rajni Kabra. Now she will be known for her event Cyclothon. This event has done along with two major organizations, Ekal Vidyalaya and Lions Club. The Ekal Vidyalaya has more than 1 lakh school, and the Lions Club, we know, the world's largest social organization. Great event, flawless event by Rajni Kabra. Now moving on to Anshu Mundra, director for Mahesh Gaurav. The ever smiling and positive director of Mahesh Gaurav, who led the MPF Pune West name to fame. Great skill. Thank you, Anshu. You know, Priti Ji Bhattar, director for Diwali Milan. The charming, smiling, and ever glowing persona MPF Pune West. From the conceptualization of program to the successful delivery, it is indeed applaudable. Everyone is in the nice super attire, and it was grand program of the Diwali Milan for the year. गौरव बंसाली, जब मैं याद करता हूं तो ऐसा लगता है कोई तो ऐसा प्रोग्राम हो जिसके बारे में कुछ सोचूं और बाद में लिखूं, बट नन आई कुड. गौरव, you will be known for mashallah, unforgettable roadies and kawali during the picnic. Great event, one could keep in memory. Moving on to Yogesh Jaju, a common program of Mahesh Idol. We know Yogesh Ji for his plasma donation during this need of an hour. Our corporate background personality, a cool mind, a great planner, a very well program delivered by him. Thank you. CM Dinesh Rathi, learn, unlearn, and relearn. The idea of relearning, taking session in series on important topics which are useful to sharpen our eggs. Great series we had during 1920. Good one, Dinesh. He is an author and motivational speaker as well. Engineer Shyamji Bhutada, a quote of Swami Vivekananda: arise, awake, and do not stop until the goal is reached. Director Shyamji Bhutada had set a goal to bring all the chapters together. We had 3 chapters finally, and he has created a donation mindset for needy students. Fundraising is the gentle art of teaching at the joy of teaching. It was a grand success program and broke all the records till date. Ajay Ji Toshniwala, creative, innovative, and enthusiastic personality who is known for his successful delivery. The personalized invitation is also given by Priti Ji Bhattar in Diwali Milan and Ajay Ji Toshniwal, which make each member a nostalgic. The success of President Choice event confirms the creativity Ajay has in impedance. Great event, Ajay, you have delivered. Engineer Radhesham Ladda, stage के पीछे के कलाकार, director of IT and referral connector. The mind and person behind flawless execution of console of GOE. Great event we had, his flawless effort, and even he is working in this year wherever it is required from behind the curtain. Amit Jirati, a great networker, a good personality, director of public relations, affluent with people management skill, extrovert person, great. You handle the PR portfolio with poised and sporty attitude. Good, Amit Ji. CA Gopalji Jaju, a guardian trustee. Mentoring is the key to success, and CA Gopalji had always been there to mentor us throughout. He made himself available for all the BOD meetings. I would like to thank to all our past presidents for supporting me throughout the tenure positively. I would like to thank to all the sponsors for supporting us. I will not take name because I might miss and it might hurt someone. Relationships are more important in life, but it is important for those relationships to have life in them. I humbly appreciate everyone's contribution in helping us to reach where we are.
To me, this MPF saga is like flight in the air, supported by its forward action. Trust me, another interactive, fun-filled, and memorable year is. I congratulate once again to President Engineer Nilesh Lakhotia for the year 2022 to take this torch at new high. I welcome you and entire BOD. द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए. To all, please wear mask, sanitize hand, and take care of yourself at best. Over to you, Nilesh ji. Jai Shri Krishna, Jai Mahesh. And I thanks one and all MPF members who had supported me throughout my tenure. Thank you very much. Thank you, Dinesh ji. Wow, a long way to go, MPF West. It was a fun year. In spite of lockdown and difficult times, MPF members always made us feel family with lots of virtual events last year. So now I invite the mastermind president who was working since last year and also going to make memories in 2021 for us. I call upon engineer Nilesh Ji Lakhotia to come forward and share his vision. Jai Sri Krishna, Jai Mahesh. A very happy morning to one and all present, and a big thank you for taking time out and attending this event on a lazy Sunday morning. I present my prayers to Adi Devata Shri Ganesh to keep us blessed with his divine blessings forever. I owe my Shirsh Pranam to my parents and BK Sulbha Didi to seek Ashirwad to lead the journey of MPF Pune West along with elected board of directors for year 2020-22. This tenure is different and I tried to put my feelings in few lines. यह साल कुछ तो अलग है, यह साल कुछ तो अलग है जिसका एकमात्र कारण कोरोना वायरस है, वरना हम सब आज ज़ूम के बजाय किसी लॉन पर खुली आसमान के नीचे या किसी ऑडिटोरियम में बैठे होते। घर घर गिफ्ट हैम्पर भेजने के बजाय हम सब साथ में लंच या डिनर कर रहे होते। आईपीपी दिनेश जी मुंदड़ा की जगह मैं आईपीपी का स्पीच दे रहा होता और मेरी जगह प्रेसिडेंट इलेक्ट किशोर जी भंसाली प्रेसिडेंट का स्पीच दे रहे होते। यह साल कुछ तो अलग है, यह साल कुछ तो अलग है जिसका एकमात्र कारण कोरोना वायरस है। I am proud MPFian and I am sure you all will have the same feelings. I am honored and humbled to be elected as a president, and with the help and support of my board, I will do my best to meet the challenge. MPF Pune West has been built on a strong leadership foundation. Let me take this opportunity to thank you all past presidents, Nilesh Ji Dhoot, Vipul Ji Navandar, and Manoj Ji Bhattad for the successful years they have given during their tenures. Our chapter membership is second highest amongst 8 MPF chapters. Today, we are a family of 171 couple members, and I'm proud to announce that our chapter have started the wait list for any new members. I extend my sincere respect and thanks to all MF City trustees, governing council members, office bearers and directors from other MPF chapters, and senior Maheshwari dignitaries from various organizations present today. Let me take this opportunity to congratulate immediate past president Dinesh Ji Mundra and his entire board for a very successful year 2019-20. A job well done. He will continue his support to me and provide guidance throughout the year. I would like to congratulate each of the board of directors. Nomination committee have shown great confidence in you and me by electing us to our respective positions. And I look forward to serving with you. Our secretary, Neetaji Dhoot, is not new to the job. She brings a wealth of knowledge to the board. Our treasurer, Lakshmikanji Maniyar, will have a lot to keep track of and manage funds.
Each director have great plans for respective programs since last year, but due to pandemic and restrictions on social gatherings, they have to shift to virtual events last year. All have already seen the energy, enthusiasm, and commitment that each director has shown during the last year via innovative virtual programs. To name few, here are some of the events from the last year. Live doctor panel discussion. Samvit team arranged series of virtual events, and first one in the series was live panel discussion on COVID-19 awareness during the last year lockdown. Donation drive. With members' support and donations, we could distribute 450 plus food grains packets covering 1500 plus individuals. Joy of life. Team managed to distribute Arsenic Album 30 to all members on occasion of Mahesh Navami. Mahesh Gaurav team conducted laughter yoga with renowned guru of giggling, Mr. Madanji Kataria, on International Yoga Day. Moon salutations were attractions for everyone. To keep the festival moods alive, GOE team conducted Shadumati Ganpati workshop. President Choice team conducted Power Garba with Fitness Ka Tadka with Satyajit Vora. Navdurga performances by kids was appreciated by all. Diwali Milan team conducted Puneri quiz. Even Google did not help to find out the answers. Box cricket tournaments. We had 2 such tournaments and only physical event we had last year. Mahesh Gaurav team conducted Kaun Banega MPF Master, and that was well recognized across all the MPF chapters. And there are few more. A big thank you to all sponsors for supporting virtual programs. MPF Pune West is celebrating 5th year this year, rather 6th year due to extension of a term till March 22. I have simple 5-point vision for this year. Focus on 3 E's: engage, energize, and lighten. In short, व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो. Boost member attendance. We have seen average attendance in any program so far is 60% to 70%. We encourage members to attend maximum programs. Active participation. Members should participate and play active roles in committee programs. Increase membership of chapter. We are a strong family of 171 members today and at its peak already. Bonding among old and new members. Create opportunities of social bonding among old and new members and make this chapter more collaborative. I appeal everyone that give your 100% for assigned committee, support your directors, and participate in all chapter programs, activities, and make this year a rocking one. Thank you all and wishing you a great year ahead. Finally, I request everyone to get vaccinated on priority. जाते जाते 4 लाइन कहना चाहूंगा. ऐ मेरे भगवान तू सबकी हिफाजत करना, जान किसी की भी हो सबको सलामत रखना, सबको सलामत रखना. दर्द छूकर गुजर जाए, दर्द छूकर गुजर जाए, नासुर ना बनने पाए, आई है जो आंधी पैंडेमिक. ऐ मेरे भगवान तू इस आंधी से सबको बचाए रखना, सबको बचाए रखना. स्टे स्ट्रांग, स्टे सेफ. थैंक यू. थैंक यू नीलेश भैया. अब आगे बढ़ते हैं. समय है जानने का हमारे नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. इनका परिचय होगा कुछ खास अंदाज में, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी मेरी साथी निधि दियानी को. श्री कृष्णा, अब हम परिचय देना चाहते हैं हमारे एमपीएफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का. हम परिचय देते हैं हमारे मुख्य पद का, प्रेसिडेंट मिस्टर नीलेश जी लखोटिया का. प्रभावशाली व्यक्तित्व के सरताज, पुरनाते कौशल्य का साज, सभी का आपने बढ़ाया हौसला, सदा अचूक रहा आपका फैसला.
अधिनायक के रूप में खूब जचते हो आप, तभी तो पहन रखा है आपने सभापति का ताज। परिचय देते हैं हमारी सेक्रेटरी नीताजी धूत का। उनके लिए चंद लाइनें। सराहनीय है आपका आत्मविश्वास, आपसे जुड़ी थी संगठन की आस, आपके अनुभव और निष्ठा ने दिया सबको ऊंचाइयों का एहसास। व्यक्तित्व से तो आप हो वास्तुकार और शिल्पकार, आपसे अच्छा कौन संभाल पाएगा एमपीएफ वेस्ट के सचिव का कार्यभार। अब हम परिचय देते हैं हमारे ट्रेजरर सीए लक्ष्मीकांत जी मनियार का। सरलता आपके स्वभाव की हम सब ने अनुभव की है, महत्वाकांक्षाओं से भी ऊपर आपने प्रगति की है। लक्ष्मी तो आपके नाम में ही है, क्या संयोग आया है, एमपीएफ वेस्ट के फंड की निगरानी करने हमने लक्ष्मीकांत जी मनियार को पाया है। अब आ रहे हैं हमारे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट मिस्टर दिनेश जी बूंदड़ा। पल में बन जाते हो सबके खास, हर रिश्ते में भरते हो मिठास, अभिवृत्ति और निडर स्वभाव सब पर आपका अनोखा प्रभाव, आपके कार्यकाल ने रखा ऊंचाइयों का आदर्श, मुश्किलों को भी आसान करेंगे लेकर आपका परामर्श। अब हम इंट्रोडक्शन देते हैं हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट का मिस्टर किशोर जी बंसाली। आपकी योजना और अवधारणा करती है धमाल, रचनात्मक कार्यों की बन चुके हो मिसाल, आपके डोर का बेसब्री से है इंतजार, एमपीएफ वेस्ट दे रहा आपको ढेर सारा प्यार। तो अगले कौन आ रहे हैं? रचनात्मकता और कला से आपने बनाई अनोखी पहचान, सादगी भरा चरित्र आपका सराहनीय है काम, प्रकृति की खूबसूरती को हमसे बहुत प्रियशा है, तभी तो जॉय ऑफ लाइफ को दिशा देने एमपीएफ वेस्ट ने एकता जी साबू को तलाशा है। आगे बढ़ते हुए हम अब परिचय देते हैं गिफ्ट ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर मिस्टर अमित राठी। साहस और विजय का सर पर आपके ताज है, स्पोर्ट्स प्रेमियों के दिलों पर करते आप राज है, जरूरतमंदों से उनकी जरूरतों को पहचानना है, एजुकेशन का उपहार देकर किसकी जिंदगी संवारना है। अब हम परिचय देते हैं हमारे महेश आइडल के डायरेक्टर मिस्टर जय जी जाजू का। आपके ज्ञान और रणनीति के चर्चे हैं हजार, निफ्टी और सेंसेक्स ने भी आपको खूब सहा बार बार, आपने तो जय का परचम ऊपर से लिखकर लाया है, इसीलिए तो महेश आइडल की प्रतिभा खोजने का भार पाया है। अब हम परिचय देते हैं हमारे पिकनिक डायरेक्टर मिस्टर अजय जी तोषनीवाल का। आपके पास हमने देखा है विचारों और योजनाओं का भंडार, क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी की आप लाने वाले हो बहार, एमपीएफ ने पिकनिक से उम्मीद लगा रखी है अपरंपार, क्योंकि इस बार डायरेक्टर पद पर विराजमान है मिस्टर अजय जी तोषनीवाल। देखते हैं आगे कौन है, आप पहचानिए। पॉलिटिक्स और क्रिकेट में आपका ज्ञान और रुचि कुछ खास है, देखकर ही लगता है कि बंदा ये बिंदास है। बैटल ऑफ प्रोफेशन में सब दिखाएंगे अपना जलवा, क्योंकि इस बार दिशा देने वाले हैं हमारे सागर करवा। डिजिटल एंड रेफलर कनेक्ट, आपके नाम में झलकती है रोशनी और सुनहरी धूप, सराहनीय है आपका कार्य जो देता है शब्दों को स्वरूप। आईटी और रेफरल कनेक्ट का संभाल रहे हो भार, ज्ञान अनुभव और प्रतिभा को बनाकर आधार। इंजीनियर संदीप जी जाजू। अब हम इंट्रोडक्शन देते हैं हमारे प्रेसिडेंट चॉइस डॉक्टर पूनम जी राठी का। सदा खिलखिलाता चेहरा और हर एक से रिश्ता गहरा, सकारात्मकता और चंचल स्वभाव कर डाला सब पर अनोखा प्रभाव, जिसके व्यक्तित्व ने सबको मुस्कुराहट है बांटी, ऐसी है हमारी डायरेक्टर प्रेसिडेंट चॉइस मिसेस पूनम राठी। पब्लिक रिलेशंस, मीठे बोल, सरल स्वभाव, आकर्षक व्यक्तित्व और मधुर वचन, हर कोई सुनना चाहे इनके प्रेरणादायक अनमोल कथन। ऑलराउंडर का खिताब इन पर अच्छा सचता है, डायरेक्टर पीआर का पदभार बहुत ही खूब जचता है। दिनेश जी राठी के डायरेक्टर मिसेस सीमा जी बंसाली का। समय से आपका गहरा रिश्ता, शीघ्र स्वरूप खूब जचता, सहायता के लिए सदा ही तत्पर, हर्ष उल्लास से भर भर कर, देना पड़ेगा क्रिएटिविटी का खजाना, दिवाली को इस बार खूब सजाना, करना आपकी मुस्कान सा रोशन, दिवाली मिलन का ये है अनोखा जश्न। अब हम परिचय देते हैं महेश गौरव के डायरेक्टर का मिस्टर सुनील कासट।
सरलता आपका आभूषण है, अनुशासन की है आदत, टेक्नोलॉजी में ज्ञान आपका भर भर के कर रहा स्वागत। महेश गौरव की गूंज की अभी से हो रही है आहट, इस वर्ष की डोर संभाल रहे हैं हमारे मिस्टर सुनील कासट। अब हम परिचय देते हैं हमारे सामवेद के डायरेक्टर मिस्टर श्याम जी भूतड़ा का। शांत स्वभाव, अनोखे विचार, अनुभवों को आपने बनाया आधार। आपके परिचय की अलग है शान, सभी से मिला ढेर सारा सम्मान। सामवेद के माध्यम से आपको मिलेगा ज्ञान, आपके नेतृत्व से बनेगी अलग पहचान। इसी से हमारा परिचय सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए समाप्त होता है। थैंक यू, एंजॉय द प्रोग्राम। थैंक यू दीदी सो मच, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। After these poetic lines on our BOD, let's move on to the most beautiful part of our Ashirwad Samaroh today, preachings by V.K. Sulabha Didi. We had a pleasure to visit her Rajyog Center in Dhankabri last week. V.K. Sulabha Didi has finished her master's degree into commerce and later on also achieved her master's into value education and spirituality. Qualified as a government auditor, also as a tax consultant. She is in charge of Vishwa Parivartan Bhavan, the Brahmakumari Center at Dhankabri. Center is practicing and teaching Raj Yoga in Dhankabri since many years. Lot of social programs titled under women's empowerment, youth empowerment, personality development, thinking, stress management, relationship, and so many topics like that have been preached by Sulabha Didi. So I would request for Sulabha Didi's preachings here. लव यू। आज हमें बहुत खुशी है कि आप सभी इतने महान सौभाग्यशाली अतिथि, परमात्मा के दुआओं से संपन्न, परमात्मा पालना का प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसे इस पुण्य स्थल पर पहुंचे हैं और आपके इस कार्य की शुरुआत गॉड ब्लेसिंग से हो रही है। ये आपका परम सौभाग्य है। तो आप वो परम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको ईश्वर की घर से, ईश्वर की ओर से बहुत बहुत दिल की दुआएं, अभिनंदन और आप सभी का हार्दिक स्वागत हो रहा है। कोई भी जिम्मेवारी इस विश्व रंगमंच पर उसी व्यक्ति को मिलती है जो उसके कैपेबल होता है। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जो भी अथॉरिटीज आपको मिलेंगी तो उनको अच्छी तरह से निभाते हुए हमें क्या करना है, जस्ट मैं थोड़ा सा गाइडलाइंस आपको दुआओं के साथ देना चाहती हूँ। क्योंकि व्यक्ति के पास पद आता है तो साथ साथ उसको अथॉरिटीज मिलती है और उसके साथ साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलती है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का बैलेंस रखते हुए अगर दिल की दुआएं जमा करनी है तो किन बातों के ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो अधिकारों का उपयोग करते हुए, वैसे तो कहते कर्तव्य पूरे करते हैं तो अधिकार ऑटोमेटिकली मिलते हैं, अथॉरिटी ऑटोमेटिकली चलती है, चलानी नहीं पड़ती है। इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपके ऊपर आएंगी। जो भी हमारे पुराने बीओडीज हैं, ऑल पास एंड प्रेजेंट, सभी के लिए मैं कह रही हूँ, उन्होंने भी आज तक आपके फाउंडेशन को यहाँ तक लाया है, उन्होंने भी अपनी जिम्मेवारियों को निभाया है, आगे भी वो आपको कोऑपरेट करेंगे। आपको अपनी जिम्मेवारियों को निभाते अपनी अथॉरिटीज को भी यूज करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए जस्ट 2 थिंग्स इज देयर। सबसे पहली बात है कि अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए हमें अपने छोटे और बड़े कलीग सभी के साथ बहुत रिस्पेक्ट और बहुत रिगार्ड के साथ पेश आना है। अगर आप अपने जीवन के अंदर ये वैल्यूज यूज करते हैं, अपने कारोबार में भी अगर आप रिस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं और साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए जब आप लाइट रहते हैं, एज ए इंस्ट्रूमेंट होकर के रहते हैं, तभी आप उसकी जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्यक्ति को भारी करती है या कभी कभी वो चिंतित हो जाता है,
लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर एज ए इंस्ट्रूमेंट निभाते हैं, लाइट होकर के निभाते हैं, तो हम एक दूसरे को लाइट ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए ये 2 मंत्र याद रखेंगे। फर्स्ट थिंग इज रिस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ व्यवहार करेंगे, और सेकंड थिंग इज लाइट होकर के, अपने आप को इंस्ट्रूमेंट समझ करके। करण करावनहार वो है, हम जस्ट इंस्ट्रूमेंट है, ये समझ करके कार्य करेंगे तो आप अपनी जिम्मेवारियों को बहुत अच्छी तरह से निभा सकेंगे। सेकंड थिंग, अथॉरिटीज मिलती है तो बहुत खुशी होती है ना। अधिकार तो हर एक को हर एक चीज के लिए चाहिए, पर अथॉरिटीज को यूज करते हुए, लोगों के साथ मिलन मिलापात करते हुए उनके दिलों में अपनी जगह बनानी है, क्योंकि हर साल तो बीओडी चेंज होंगे ही ना। पद तो चेंज होता है, स्थान चेंज होता है, व्यक्ति चेंज होते हैं, पर याद किनको किया जाता है, दिल में कौन समा जाते हैं। तो जो अपने पद पोजीशन के आधार से अपने मानवीय मूल्यों को उजागर करते लाइफ में, वो दिलों में जगह बना लेते हैं। तो अपनी अथॉरिटीज को यूज करते हुए सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखिए। वन थिंग इज कि हमको अपनी अथॉरिटी को यूज करते हुए एक्सेप्ट करना है, जो भी जैसा भी है उसको वैसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इसलिए जो जैसे है, परमात्मा की इतनी सुंदर रचना है, हम कोई करेक्शन नहीं करें, कोई आर्गुमेंट नहीं करे, कोई कंप्लेंट नहीं करे, लेकिन जो जैसा है ईश्वर की रचना है उसको स्वीकार करें। आप एक्सेप्ट करते जाएंगे, स्वीकारता का मूल्य अपने जीवन में अपनाते जाएंगे, तो आप पाएंगे आपका कारोबार बहुत इजी होगा। आप जिसको भी कहना चाहते, कहने के पहले, अधिकारों का उपयोग करने के पहले ही वो आपकी बात मानेंगे, स्वीकार करेंगे, कि आपने उनको स्वीकार किया है दिल से, तो वो भी आपको दिल से स्वीकार करेंगे। और सेकंड थिंग है कि जब पद होता है, पोजीशन होता है, अथॉरिटीज होती है, तो कई बार नेगेटिविटीज को भी सुनना पड़ता है, या फिर कंपटीशन भी होती है, जो भी अपोजिशन भी होती है, सब होता है। लेकिन उन सब चीजों को अवॉइड करना है, अपने अंदर उसको जगह नहीं देनी है। जो भी व्यर्थ है, नेगेटिव है, अननेसेसरी है, उसको अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कार्यभार करते हुए, आपकी जिम्मेवारियों को संभालते हुए, अपनी अथॉरिटीज को यूज करते हुए सफलता आपके कदम चूमेंगी। मैं समझती हूँ कि आप सभी उस समाज के प्रदर्शक है, जो एक श्रेष्ठ समाज गाया जाता है। ऐसे कहते हैं कि अच्छे संस्कारों से एक अच्छी संस्कृति जन्म लेती है। आप उस संस्कृति से बिलोंग करते हैं जिनके संस्कार ऑलरेडी अच्छे हैं, ऐसा मेरी मान्यता है और ये प्रूव है। तो अच्छे संस्कारों से एक अच्छी संस्कृति बनती है, और संस्कृति से संसार बनता है, संस्कृति से संसार बनता है। तो मेरी आप सबके लिए यही शुभ भावना, शुभकामनाएं, दुआएं रहेंगी कि आपका जो कार्य है फाउंडेशन का, क्लब का जो भी है, ये कार्य एक वैल्यू बेस्ड सोसाइटी निर्माण करने के कार्य में आपका सदैव योगदान बना रहे। एक श्रेष्ठ संस्कृति के निर्माण के लिए हम सभी अपने आप को क्या समझे, जिम्मेवार समझे। एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए, वैल्यूबल सोसाइटी के लिए हम खुद वैल्यू बेस्ड रह करके वैल्यूबल सोसाइटी का निर्माण करें। उस कार्य में सदैव आपका योगदान बना रहे, नाओं के साथ बहुत आगे बढ़े, अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होते रहे, और आज तक जो अपना फाउंडेशन का कार्य है वो और भी ऊंचाई पर आप उसको लेकर के जाए, और सदैव अपने तन मन और अपने रिलेशन को संभालते हुए एक वैल्यूबल सोसाइटी के निर्माण के लिए आपका साझा योगदान बनता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी सो मच। फिर से वक्त हो गया है लकी ड्रॉ का। आई एम श्योर इस बार सिर्फ मेरा ही नंबर आएगा। सो ओवर टू श्रवण जी बियानी।
Congratulations to the winner. Now it's time for us to introduce to all of you our Power Pack speaker for the day, Manish Gupta, mentor and role model to a legend. He has sought to serve the aspirations of entrepreneurs, leaders, professionals, homemakers, students, and teenagers, and thus contributed his might towards a more evolved society. He has an acknowledged authority on entrepreneur empowerment, leadership development, and organization turnaround. He has made a positive difference to the lives of more than 500,000 people, 1,000 plus entrepreneurs, and 1,500 plus organizations. MG is also founder of Chrysalis Entrepreneur Forum and the Chrysalis Foundation. So what we want to listen to him today is all about the inner work. Post his session, we are open for the question answers session in the chat box. So over to you, MG. Am I audible? Yes, sir. Okay. Is my voice good enough for everybody? Yes, sir. Oh, great, great. आप लोग ना मुझे सिग्नल्स देते रहना बीच में कि if you're there with me or not, मुझे मालूम पड़ेगा कि आप लोग मेरे साथ हो, कहीं सो तो नहीं गए और मेरी ऑडियंस मेरे साथ जिंदा है. So namaste everybody. It's a pleasure to be here this morning with all of you at Mahesh Professional Forum. This is my second, I think, talk for your forum. And congratulations to the board which has taken up charge for this year. आप सबको बहुत बहुत बधाई. And I know from the perspective of managing a forum, I know from the perspective of organizing a forum like this, it's humongous work. बहुत काम होता है ये. It's not something which happens by the way. It's always out of the way to get people together, to make them come in for a common cause, for a common purpose. और उनको साथ रखना, संगठित रखना, और उनको उनके अंदर उतनी ऊर्जा, उतना एनर्जी मेंटेन रखना, it's huge task. So my compliments, my best wishes for all of you for the coming year and years to come. I was going through your entire website. You got 7 chapters and you have around 700 plus members. I think और भी बढ़ गए होंगे. And it's a growing forum. So what it was when many years ago when I addressed for the first time to what it is now, I think it is much more organized, much more cohesive and much more focused. ये एक गर्व की बात भी है that you are a part of such a forum. And at the same time, I want you to understand this, that मेरा पहला point, because time is limited, so I just want to move on directly with a few deliverables which I have for all of you. कि हम इस forum को तो आगे बढ़ाना चाहते हैं, and that's what the thought process would be of the newly elected board and all of you. So ये आगे बढ़े, and जितना बड़ा होगा उतना we'll take pride in it, we'll tell the world, or the world will ask us, are you a part of this forum? And वो pride लेना भी चाहिए. I always feel that आप जिस चीज का हिस्सा हो तो उसमें तो प्राइड लेना चाहिए. आप हिस्सा भी हो और उसमें गर्व नहीं कर रहे हो तो फिर मजा नहीं. आप उसका हिस्सा हो, आप वहां उस फोरम का हिस्सा हो, उस जगह का आप पार्ट हो, बट यू आर नॉट फीलिंग ग्रेट अबाउट इट, तो उसमें आप कुछ एड ऑन नहीं कर सकते. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज take pride in whatever you have in your forum as of now. I'm not saying that the forum is whatever you have is the world's best forum. We are improving, we are becoming better, but nothing can become better till we start taking pride. चाहे वो घर की बात हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे वो रिश्तों की बात हो, मुझे लगता है जो हमारे पास है, हम जिसका हिस्सा हैं, पहले उसमें गर्व करना चाहिए. We should take pride. We should feel proud of it. इस देश में रहते हैं और इस देश पे गर्व नहीं करेंगे तो फिर इसको अच्छा कैसे बनाएंगे? Now I'm not talking about आंखें बंद कर लेना कि जो कमियां हैं उस पे, बट आई एम सेइंग वो कमियों को दूर करने के लिए हमें पहले तो उस पे गर्व करना पड़ेगा दैट वी आर अ पार्ट ऑफ इट. क्योंकि अगर हम प्राइड नहीं करेंगे तो हमें वो कमियां जो है ना चुभेंगी, और वो कमियां जो है इट विल बिकम काइंड ऑफ अ क्रिबिंग पॉइंट फॉर अस. इन द सेम वे इफ यू कम बैक टू द फोरम, देयर माइट बी सो मेनी एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, सो मेनी एस्पेक्ट्स व्हिच द elected bodies or elected people would have to take care of. कुछ वो कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे. And if we are taking pride, we would be able to tell them suggestions. But if we don't take pride,
we would end up finding faults and complaining about it. So first and foremost, take pride. And same goes to everything back at home also. तो आपके बच्चे हैं तो they're not having everything which you would want as a child in them. कुछ कमियां हैं बच्चों के अंदर, उनका अपना एक नेचर है, अपनी पर्सनालिटी है. हम ये नहीं कह रहे उनके प्रति आंखें बंद कर लो, उन कमियों के प्रति अपनी आंखें बंद कर लो. आई एम सेइंग till you don't take pride in your child, till you don't accept the child as he or she is, how will you work on improving your child? And same goes to all the wives. जो आपका आइटम है, जो आपका हस्बैंड है, take pride in him. अब टेढ़ा है लेकिन मेरा है. So till you don't take pride in him, how will you make him better? हाँ, बहुत कमियां हैं, बहुत इंप्रूवमेंट बाकी है उस इंसान के अंदर, but take pride. अब अपना आइटम है ना, अब कुछ कर नहीं सकते. The same way, let's take pride in a country, let's take pride in a city where we stay. I remember a small story, incident from my life. Way back in 1994, and मैं अपना घर छोड़ के आ गया था. 94 की बात है. Some of you know, some of you don't know. I come from a beautiful, lovely place called Nainital. And life set थी as a 23-year youngster. बोलते ना एक typical business family है, life set है. नीचे हमारा रेस्टोरेंट था, ऊपर हमारा घर था, सामने बहुत बढ़िया लेक. If you were to go to Nainital, there's a beautiful lake. तो पूरे जिंदगी from my birth till 23 years of my age, मैं उस लेक में ही मेरे कमरे की विंडो खुलती थी. So life was, मतलब people say it was kind of a heaven life. लेकिन हमें नहीं लगता था कि वो heaven है because हम वहाँ रहते थे. So वो बोलते ना घर की मुर्गी दाल बराबर. So that's the kind of life I had. Business set था, business में कब घुस गए after education मालूम नहीं पड़ा. Just one fine morning, क्या सटका दिमाग में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम. I just left my home, and I was there, in Delhi, riding my bike, which I took from Nainital. So ऐसी blue bag रखा मैंने, उसमें कपड़े डाले, अपनी बाइक को लिया और मैं चल दिया दिल्ली. And a few days on the streets of Delhi, not knowing what to do. अच्छा, कोई झगड़ा नहीं घर में, कोई पापा से कोई झगड़ा नहीं, माँ से कोई झगड़ा नहीं, भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कोई लड़की का चक्कर नहीं कि लड़की के पीछे भागा हूं, कोई अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसका भी कोई चक्कर नहीं. सिर्फ जेब में 5-7 हजार रुपए थे, वो लेके मैं चल दिया. And घर वाले भी बिंदास, because that's I had been a kind of a vagabond. I would travel whenever I wanted to, but I would always come back. But this time मुझे ऐसा लगा कि वापस ही नहीं जाना है घर. And on the streets of Delhi, I was roaming. I remember it. तो मैं जो है, I went to one of the railway stations, निजामुद्दीन railway station में मैं गया, और वहां पर एक ट्रेन थी which was going to पुणे. तो ऐसी मस्ती में मैंने कुली को पूछा ट्रेन कहाँ जा रही है. उसने कहा पुणे जा रही है. मस्ती में मैंने उसको कहा यार ये बाइक डाल सकता है कि कार्गो में. उसने कहा हाँ बाबूजी डाल देंगे. तो उसने मेरी बाइक को डाल दिया कार्गो में. मैंने एक नॉर्मल जनरल टिकट लिया और मैं पुणे आ गया. So when people ask me why did you come to Pune, I have only one answer. I came to Pune because वो ट्रेन पुणे आ रही थी. Had the train gone to Bangalore, I would have gone to Bangalore. So that's how my life started here. But when I landed here in Pune, I'm cutting a lot of stories which happened in between. A few days in Pune, and I happened to talk to my friend in Delhi. और उसने मेरे से कहा कि तू कहाँ है? तो मैंने कहा मैं यार पुणे आ गया हूँ. क्या करेगा? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं. And then he said one thing which जो मुझे दिल को बहुत चुभी. और उसने मेरे से कहा तू कौन से झंडे गाड़ लेगा पुणे में? And I don't know, he said it out of ego, या फिर उसको खुन्नस थी, या फिर उसने ऐसे ही बोल दिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे दिल में बड़ी बात चुभ गई. एंड उसको मैंने फोन में बोला, मुझे जो अभी याद है, बहुत बढ़िया ढंग से अभी तक याद है मुझे. मैंने उसको फोन में बोला यार मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूंगा. इनफैक्ट मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो 12th पास हूं. आई हैव नॉट बीन टू कॉलेज आल्सो. आई हैव जस्ट बीन इनटू अ बिजनेस व्हिच आई हैव बीन इनटू विद रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स. यही आता है मुझे, और मैं यहाँ आ गया हूँ, पैसे भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूंगा. लेकिन तूने ये डायलॉग बोला है ना, अब मेरी बात सुन. एंड आई टोल्ड हिम कि मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूंगा, लेकिन इतना तो मुझे मालूम है कि आने वाले कुछ सालों में ऐसी जिंदगी जीऊंगा कि इस शहर का नाम मेरी वजह से कहीं ना कहीं रोशन तो होगा ही. और मैंने वो डायलॉग बोल के रख दिया. वो मेरा बचपना समझो, मेरा वो बोलते ना एट दैट यंग एज ऑफ 23-24 यू फील दैट द वर्ल्ड इज योर्स. वो लड़कपन समझो, मैंने वो डायलॉग बोल दिया. और मैं शायद डायलॉग बोल के वो भूल भी गया कुछ साल. And then it so happened I was busy in making my own life, my own career, my own setting here. और करते 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 एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया इन स्काई डाइविंग, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया इन स्कूबा डाइविंग, और बहुत सारी चीजें हो गई इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड फिर मुझे वो स्टेटमेंट याद आया कि यार I was instrumental. It's not about bragging and boasting about myself. It's just a point of taking pride.
कि जब मैं ऐसा अकेला होता हूं, जब मैं ऐसा कभी शांत बैठता हूं, तो मैं कहता हूं यार कम से कम 2 बार तो वर्ल्ड मैप में या वर्ल्ड न्यूज में 2 बार पुणे का नाम तो आया मेरी वजह से. एंड दैट हैपेंड बिकॉज आई टुक प्राइड इन वेयर आई वॉज. आई टुक प्राइड इन वॉट आई वॉज इन. तो जब तक हम गर्व नहीं करते जहां हम होते हैं, तो तब तक हम उसके लिए कुछ बड़ा नहीं कर पाते. तो हम सब इस फोरम के मेंबर्स हैं. एंड इस फोरम को मैं फिर ये बोलता हूं, दिस इज नॉट द वर्ल्ड्स बेस्ट फोरम. हमारी भी कमियां हैं, तो दिस इज नॉट द वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री. इस देश में भी कमियां हैं, लेकिन जब तक हम गर्व नहीं करेंगे, हम प्राइड से इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक हम उन कमियों को दूर नहीं कर सकते. सो दिस कमिंग ईयर I feel that you should walk with pride, the pride of being a member of महेश प्रोफेशनल फोरम. एमपीएफ के मेंबर ऐसा आपके सीने पे दिखना चाहिए, आपके चेहरे पे दिखना चाहिए, आपके माथे पे दिखना चाहिए, आपके बोलने में नहीं दिखना चाहिए. पीपल शुड स्टॉप यू एंड से यार तुम कहां के मेंबर. यू टेक प्राइड इन. सो जो उसका एथोस है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका जो क्रेडो है, जो आपका पर्पस है, जो मकसद है इस फोरम का बनाने का, उस मकसद को जब आप जियोगे, you will see that you will be a living example of what taking pride is all about. So my first insight to all of you is, we're talking about inner walk. We're talking about going for a walk inside. So inside the पहला walk, पहला station हमारे पास है, let's take pride. Second, if आप मेरे साथ हो, if I'm able to, you all have your chat, right? So चैट में अगर आप मुझे हल्का सा कुछ सिग्नल दो कि आप लोग सांस ले रहे हो कि नहीं, तो मुझे बताओ. आई एम एन ऑडियंस गाय यार. ये ना ऑनलाइन के चक्कर में पिछले साल 1.5 साल से अपन कैमरे से बात करने में लगे हुए हैं कंटिन्यूअसली. ओके, आनंद सेज आई एम प्राउड टू बी हियर. वाह. यस, अमित सेज मैं आपको सुन सकता हूँ. ठीक है, थैंक यू सो मच अमित. ठीक है, ग्रेट. ओके, वंडरफुल. थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर थोड़ा आपकी उंगलियां भी चलेंगी और थोड़ा आप जागे भी रहोगे और मेरे साथ फोकस भी रहोगे, क्योंकि स्टैटिक में ना आदमी कहीं भी चले जाता है. सो फर्स्ट station when we go for an inner walk is, let's take pride. And it is in relation to the forum, in relation to your family, in relation to your culture, in relation to your community, in relation to your religion, in relation to your country. Every aspect, हम जिसका हिस्सा है, हमें उस पे गर्व करना है. और अगर गर्व नहीं कर पा रहे हैं तो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए. आज हमारे पास ऑप्शंस हैं, we can exit. लेकिन है भी और गर्व नहीं करते तो हम वहां विनाश ही करेंगे साहब. ये बात पक्की है, राइट? तो let us take pride and then move on. Thank you everybody for you reflecting that you are there with me. Now, as we go on building this forum into a much more stronger forum, तो हम चाहते हैं ये बड़ा बने, हम चाहते हैं ये और काबिल बने. तो जितना बड़ा बनता है forum, I'm taking you to the next station from this inner walk. So from pride, I'm taking you to another aspect, that जितना बड़ा ये बनेगा. और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि when I'm talking to you about this forum, I'm not talking to you about this forum. I'm talking to you about your life. I'm talking to you about your family. I'm talking to you about your business. मैं सारे aspects को connect करके आपसे बात कर रहा हूं. लेकिन मैं forum का example लेके आपसे बात कर रहा हूं, but please see it from a holistic perspective. The second station, the more this forum becomes strong, the more this forum becomes bigger, the more will be the responsibility on each one of you. जब चीज छोटी होती है ना, तो वो कैसे भी जी ले, कैसे भी कंडक्ट कर ले अपने आप को, कैसा भी जिंदगी जी ले, किसी को परवाह नहीं होती. लेकिन जब कोई चीज बड़ी बन जाती है, कोई फोरम बड़ा हो जाता है, कोई इंसान बड़ा बन जाता है, कोई बिजनेस हाउस बड़ा बन जाता है, कोई नेता बड़ा हो जाता है, then you got to conduct yourself in a certain way. You got to conduct yourself with responsibility. लेकिन अफसोस होता है कभी कभी ये देख के कि लोग बड़ा तो बनना चाहते हैं, लेकिन बड़े बनने के साथ तो जो जिम्मेदारियां आती हैं वो हम पकड़ते नहीं. हमने वो मूवी देखी थी ना स्पाइडरमैन, तो उस बहुत पहले जो पिक्चर आई थी, द फर्स्ट ऑफ द स्पाइडरमैन, उसमें वो कहता है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी. सिमिलरली विद अ बिगर फोरम, विद अ मच मोर पावरफुल फोरम comes a responsibility, comes a stronger and a bigger sense of responsibility, comes a bigger sense of accountability, कि हम अपने फोरम को कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, कैसे हमारे इंटर मेंबर रिलेशनशिप हैं, कि हम इस फोरम के मेंबर तो हैं, एमपीएफ के हम हिस्सा तो हैं, लेकिन हमारे आपस के रिश्ते कैसे हैं. एंड थर्ड इज हाउ आर वी एज इंडिविजुअल्स. एक जिम्मेदारी की बात आती है. अगर ये फोरम अननोन है, फोरम के बारे में किसी को नहीं मालूम, लोगों से पूछ पूछ के परेशान है, भाई ये फोरम कौन है, बोलते हमें नहीं मालूम, तो चलता है कैसे भी जी लो. लेकिन अगर ये नोन फोरम है और नोन फोरम बनाना चाहते हैं इसको, तो एक जिम्मेदारी आती है हम सब पे.
इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ओनली। मैं बोर्ड को ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूं, तो बोर्ड तो बना है, बोर्ड तो मेंबर्स में से बना है, बट बोर्ड के साथ साथ हम सब जितने ही मेंबर्स हैं, हम मतलब मैं अपने आप को भी आपके साथ मिल रहा हूं कि हम जितने भी मेंबर्स हैं इस फोरम के, हम सबके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ऑफ हाउ वी आर कंडक्टिंग आवरसेल्व्स। सो द बिगर द बोर्ड, द मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। So first station was of pride. Let's take pride. The moment we take pride, we make it bigger. We create a chance of it becoming much more powerful. Second, the bigger it becomes, the more responsibilities we have. बोलते हैं ना कि जितना बड़ा घर उतनी बड़ी जिम्मेदारी, जितना बड़ा अपना पोजीशन उतनी बड़ी जिम्मेदारी कि हम अपना कंडक्ट कैसे करते हैं, right? So with a very strong sense of responsibility, I feel two aspects which I have lined up for all of you. The third station, जिसको हम बोलते हैं कि आपने इनर वॉक में अभी कहां ध्यान रखना चाहिए, what you should focus on, what you should take care of, from pride to responsibility to another beautiful aspect which I want you to focus on. मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ना ट्रैवलर्स हैं, we're all travelers, we keep on traveling. हमें थोड़ी देर आप छोड़ दो, हमें थोड़ी देर ऐसा बिठा दो, तो हम अपनी गाड़ी पकड़ के ट्रैवल करने निकल जाते हैं। And we have two places to go to, two directions, not two places, we have two directions to go to. So either we take our vehicle and we travel to the future, or either we take our vehicle and we travel to the past. Now when we take our vehicle और हम जाते हैं फ्यूचर में, भविष्य में जाते हैं, तो अक्सर लोग जो है भविष्य में जाके ऐसे स्टेशन पे जाते हैं, ऐसी मुकाम पे जाते हैं, ऐसी मंजिल पे जाते हैं जहां पर वो घबरा के वापस आते हैं। एंड खासकर इस सिचुएशन में जिसमें हम गुजर रहे हैं, कि हम जो ये अनसर्टेनिटी है, जो पैंडेमिक है, मैं बार बार मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू टॉक मोर अबाउट इट। जो हम ज्यादा बात करते हैं वो हमारी लाइफ में हम अट्रैक्ट करते हैं। सो मुझे ये बोला गया था कि आप इस पैंडेमिक को लेकर बात करें, मैं कहा मैं बात करूंगा लेकिन मैं सब्जेक्ट को बार बार इस वर्ड को नहीं बोलूंगा। तो इस अनसर्टेन टाइम में हम जो गुजर रहे हैं, तो बहुत से लोग जो है ये फ्यूचर में जाते हैं और उस स्टेशन में जाते हैं जहां पर इनका डर, इनकी एंजाइटी और बढ़ जाती है। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, फियर, एंजाइटी, वरी, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्रेजेंट लाइफ। ये वर्तमान का हिस्सा नहीं है। आर फियर, ऑल आर फियर्स, ऑल आर एंजाइटी, ऑल आर वरीज, ये जो तीनों आइटम है, ये तीनों इमोशंस हैं, बहुत भयंकर इमोशंस हैं। These three emotions are a part of our future. ये हुआ नहीं है, ये आया नहीं है, लेकिन हमने गाड़ी पकड़ी और हम वहां चले गए उस डेस्टिनेशन पे, उस स्टेशन में, और वहां से वो खरीद के लेके आ गए कहां पर? वर्तमान में। And that's how we make our present miserable. हम बैंड बजा देते हैं अपने वर्तमान की, बिकॉज हम कहीं गए और वहां से गंदगी लेके यहां आ गए। ये कुछ भाइयों का काम होता है, कुछ लोगों का काम। कुछ लोग जो है अपनी गाड़ी पकड़ के चले जाते हैं पास्ट में। अब पास्ट में अगर आप देखो तो पास्ट मतलब हमारी जो जिंदगी निकल चुकी है, वट एवर योर एज इज, आई एम 50, सो 50 years, यू आर 45 और 30 और 35, 50, वट एवर योर एज इज, आपके पीछे का जो है एक पास्ट है। एंड जिनको आदत है पास्ट में जाने के लिए, उनके लिए गुड न्यूज क्या है? एवरी डे योर पास्ट इज इंक्रीजिंग बाय 24 hours। तो आपको जाने की अगर आदत है पास्ट में, तो आपके लिए तो हर दिन बहुत जाने को है जगह। सो व्हेन वी गो टू द पास्ट, अगेन वहां पर दो ऑप्शंस हैं। वहां ऑप्शन है दैट वी कैन गो टू अ पास्ट विच इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, विच इज फुल ऑफ गुड मेमोरीज, विच इज फुल ऑफ इंस्पिरेशनल मोमेंट्स, कि हमने कुछ अच्छा किया या हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ एंड वी गॉट इंस्पायर्ड, हमने कोई चैलेंज को ओवरकम किया एंड वी फील ग्रेट अबाउट आवरसेल्व्स, हमारे साथ किसी ने अच्छा व्यवहार किया एंड वी हैव सम वंडरफुल फ्लावरी फीलिंग्स ऑफ दैट। एक स्टेशन तो ये है। एक स्टेशन पास्ट का ये है कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, हमें किसी ने कुछ कह दिया, हमें किसी ने नीचा कर दिया, हमें किसी ने चीट कर दिया, हमें किसी ने बिजनेस में धोखा दे दिया, हमें किसी ने जलील कर दिया, हमें किसी ने आगे बढ़ने से रोक दिया। These are also experiences and memories of a past. Now, हम जब गाड़ी लेके जाते हैं तो हमारे सामने ये दो ऐसे चौराहे आ जाता है, ये दोहराया आ जाता है, कभी इधर जाओगे उधर जाओगे,
और रिसर्च ये बोलती है that majority of human beings, majority of us, we go, उस दोराहे में जब आते हैं जहां दो रास्ते आते हैं तो हम अक्सर वो रास्ता चूज करते हैं जहां पर हमें किसी ने नीचा दिखाया था, जहां हमें किसी ने धोखा दिया था, जहां हमें कहीं बुरा लगा था, जहां हमें कहीं अफसोस हुआ था, और हम अनजाने में या जाने में हम वहां चले जाते हैं और हम ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि the law of life says, the law of the mind says that जिस रास्ते पे आप जाओगे आप उस रास्ते में जाने के लिए अपने आप को और तैयार कर दोगे. The law of the mind says जिन फीलिंग्स को आप बार बार एक्सपीरियंस करते हो कि आप वहां गए और आप उदासी का फीलिंग लेके आए, आप पीछे गए और आप हेट्रेड का फीलिंग लेके आए, आप पीछे गए और आप एक डिजेक्शन का फीलिंग लेके आए, तो जिस फीलिंग में आप अक्सर होते हो तो आप उस फीलिंग के बीज बोते हो फ्यूचर में कि वो फसल बन के उगे और आप उन्हीं फीलिंग्स को काटो, उन्हीं फीलिंग्स को हार्वेस्टिंग करो. ये लॉ है लाइफ का कि जिस अवस्था में आप रहोगे आप उस अवस्था को, उस स्टेट को, उस इमोशनल स्टेट को वापस बनाने के योग्य बन जाओगे. Now this is what research says. So I'll just connect you again back. I said we all are travelers. हमें थोड़ा समय दे दो. So we travel. So either we travel to the past or we travel to the future. In the future also we have two destinations. We can either travel to a great future and say okay life is going to be great, life is going to be successful, life is going to be more meaningful. ये हम बोल सकते हैं और एक डेस्टिनेशन जा सकते हैं because ये इमेजिनेशन का हिस्सा है. अभी हुआ नहीं है. जब हुआ ही नहीं है और सोचना ही है तो क्यों ना अच्छा सोचें. भाई बड़े आश्चर्य की बात होगी कि जो हुआ नहीं है हमें उसके बारे में सोचने को दिया गया है और हम उसके बारे में डर के आ जाएं वापस, तो हमें लोग क्या बोलेंगे, यार तेरे को दिमाग था और ये तो काल्पनिक है ना, ये तो इमेजिनरी है, तो इमेजिनेशन तो अच्छी कर. हमें यही तो बोलेंगे लोग. अरे येड़ा है क्या कि तेरे को कल्पना करने के लिए दिया गया और कल्पना भी तू डरी भी करता है. तो अगर आप फ्यूचर में जा रहे हो तो फ्यूचर में अच्छे डेस्टिनेशन जाओ, पॉजिटिव डेस्टिनेशन जाओ. अभी जो हुआ नहीं उसके बारे में डर के क्या मतलब है. तो बहुत से लोग जो हुआ नहीं उसके बारे में डरे हुए हैं और बहुत से लोग जो हो चुका है उसको लेके उदास है बड़े आश्चर्य की बात. जो हुआ नहीं उसको लेके डरे हुए हैं और जो हो चुका है उसको लेके उदास हैं. तो आपने क्या किया, दोनों को पकड़ के रखा है, जो हुआ नहीं उसके डर को, जो हो गया उसकी उदासी को, और उस चक्कर में जो है, जो आपके पास है वो है प्रेजेंट, एंड वी आर मिसिंग ऑन द प्रेजेंट. आई फील एमपीएफ के जो मेंबर्स हैं दे शुड हैव लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लॉट ऑफ ग्लो ऑन द फेसेस इन द प्रेजेंट. ये जवाबदारी आपके पास है. क्यों है? क्योंकि आप इस फोरम के मेंबर हो. क्यों है? बिकॉज ये फोरम ग्रो कर रहा है. क्यों है? बिकॉज ये फोरम बड़ा बन रहा है, और बड़ा बन रहा है तो फिर एक जिम्मेदारी आती है सारे मेंबर्स के ऊपर, दैट वी कंडक्ट आवरसेल्व्स द वे इट विल ऐड ऑन टू द प्राइड ऑफ द फोरम. फोरम का हिस्सा भी है और हमारी वजह से फोरम नीचे भी दिखेगा, नहीं चलेगा साहब, नॉट एक्सेप्टेबल. देखिए मैं कड़क बोलता हूं लेकिन मैं सही बोलता हूं, मेरी बातें चुभेंगी, बट बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलते हैं एनीथिंग विच हर्ट्स आल्सो इंस्ट्रक्ट्स. एंड मैंने कभी किसी अपने शब्दों को रोका नहीं है बोलने से. मैं कभी किसी को खुश करने निकला ही नहीं है लाइफ में. मैं सुबह से निकलता हूं शाम तक किसी न किसी को तो डिसप्लीज करने के लिए, किसी का तो मैं सिस्टम हिला दूं, ऐसा सोच के मैं घर से निकलता हूं, ऐसा सोच के मैं बात करता हूं. तो अगर मेरी बात सुन के आपको सिस्टम हिल रहा है तो आई एम डूइंग अ राइट जॉब. सो आर यू देयर विद मी? हाँ जी, थोड़ा सा अभी लाइव होता ना ऑडियंस, तो मैं ऐसा आपकी मुंडिया देखते रहता हूँ, सर देखते रहता हूँ, आप हिल रहे हो नहीं हिल रहे हो, मेरे साथ नहीं हो. अभी लाइव नहीं हो तो आई एम जस्ट डिपेंडिंग ऑन योर चैट बिकॉज आई कैन सी यू. अरे वाह, चलो ग्रेट, अ फ्यू ऑफ यू आर देयर. थोड़ा आपके हाथ भी चलते रहेंगे आप, इट्स एन इंडिकेशन दैट यू आर अलाइव. ग्रेट. अरे वाह, दिनेश सेज आई एम नोटिंग ऑल द पॉइंट्स. बहुत बढ़िया मीनाक्षी, थैंक यू सो मच. चलिए आशीष, वी आर देयर, थैंक यू सो मच. दिनेश, किशोर, चलो गॉड ब्लेस यू. चलो स्टे विद मी फॉर सम मोर टाइम. मेरे पास ना जार्गन नहीं है, मेरे पास कोई भयंकर लिटरेचर नहीं है, कोई भयंकर ज्ञान नहीं है. मैं सिंपल बातें करता हूं. अगर वो सिंप्लिसिटी से अगर हम समझ गए लाइफ को, आई थिंक ठीक है ना.
थोड़ी ना हमें जाके ऊपर जाएंगे, चित्रगुप्त मिलेगा रास्ते में और हमसे भयंकर हमारा क्विज लेगा, हमारा एक टेस्ट लेगा, बताओ कितना ज्ञान है तुम्हें। वो ये नहीं पूछेगा चित्रगुप्त रास्ते में। चित्रगुप्त ये पूछेगा, भाई जिंदगी जी कि नहीं जी, ज्ञान छोड़ो। वो कहेगा जिंदगी जीने भेजा था, ज्ञान लेने के लिए नहीं भेजा था। तो जो जिंदगी जी लिया वो जी लिया। सो कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, वी हैव अ व्हीकल which we travel in. Either we go to the future, either we go to the past. Now in the past, ये दो चीजें हैं। अच्छा, तीसरी चीज एक और ऐड करता हूं आपके लिए कि एक्चुअली जिंदगी जो है वो है प्रेजेंट में, ना वो पास्ट में है ना वो फ्यूचर में है। लाइफ इज इन द प्रेजेंट। तो जब हम फ्यूचर में होते हैं और पास्ट में होते हैं, उस चक्कर में हम प्रेजेंट में रहना से चूक जाते हैं और जिंदगी निकल जाती है। तो व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज प्रेजेंट? दिस इज प्रेजेंट। ये मैंने चुटकी बजाई, प्रेजेंट पास्ट हो गया, दिस इज प्रेजेंट। तो आप प्रेजेंट में ही कर्म कर सकते हो, अतीत और भविष्य में सिर्फ मन को लेके जा सकते हो। तो मन जो है आपका, ये इसकी जो सत्ता है, इसकी जो बोलते ना कि इसका जो राज्य है, इसका जो किंगडम है मन का, या तो सिर्फ अतीत में है या तो सिर्फ भविष्य में है। ये मन की सत्ता वर्तमान में नहीं है। ये मन वर्तमान का राजा हो ही नहीं सकता। वर्तमान का राजा शरीर है, वर्तमान का राजा हमारे कर्म है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया कि मैं कितना अतीत में रहूं और कितना फ्यूचर में रहूं और कितना प्रेजेंट में रहूं, अगर ये गेम समझ में आ गया, यू विल हैव अ हैप्पी लाइफ। हैप्पीनेस कैन नेवर बी एन एक्टिविटी ऑफ द पास्ट, हैप्पीनेस कैन नेवर बी एन एक्टिविटी ऑफ द फ्यूचर। हैप्पीनेस इज इन नाउ। तभी तो प्रेजेंट को प्रेजेंट बोलते हैं कि वो गिफ्ट है। और बहुत से लोग गिफ्ट खोलने से रह जा रहे हैं, बिकॉज या तो हम वहां हैं या फिर यहां हैं। तो दिस इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज, सो बहुत सारे लोग जो है स्टेज जो पीछे जाते हैं अतीत में, दे गो टू सम ओल्ड मेमोरीज विच आर वेरी पेनफुल मेमोरीज। और बहुत से लोगों को ऐसी आदत पड़ जाती है वो पुरानी मेमोरीज में, जहां दर्द हुआ है, जहां दुर्घटनाएं हुई, जहां कुछ बुरा हुआ, और अगर आदत पड़ गई वहां जाने की, तो मे गॉड हेल्प यू। बिकॉज वो आदत जो है, मेरा एक ओके, आई विल शेयर विद यू अ ब्यूटीफुल एनालॉजी, तो आपको समझ में आएगा। आप देखो ना, ये हमारे शहर में, एनी सिटी, एनी प्लेस, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, तो कचरे के डब्बे होते हैं। तो यू हैव योर गार्बेज बॉक्सेस देयर ना। गार्बेज बॉक्सेस जो है, इसके आसपास एक बहुत बढ़िया जानवर पाया जाता है। बड़ा उसका, महाराष्ट्र में हमने बड़ा अच्छा नाम रखा हुआ है उसको जानवर का नाम है डुक्कर। आप लोगों ने देखा होगा उसको। तो छोटे शहरों में, गांव में तो बड़े पाए जाते हैं। ये बड़े शहरों में थोड़ा लिमिटेड हो गए हैं, बट यू विल हैव सम प्लेसेस जहां ये बढ़िया प्यारा सा जानवर डुक्कर और उसके छोटे छोटे डुक्करे वो साथ में होते हैं। तो ये जानवर क्या करता है, ये जाता है कचरे के डब्बे में, और कचरे के डब्बे में यहां से डाइव मारता है और उस कोने से निकलता है बाहर, और पूरा कचरे में ऐसा लथपथ होता है। उसको ऐसा लथपथ होने में मजा आता है। कचरे के डब्बे के बाहर, द गार्बेज बॉक्स है, उसके बाहर जो है कीचड़ होती है। उस कीचड़ में वो ऐसा काला सन के निकलता है ऐसा करके, जबकि उसका कलर जो है लाइट ग्रे होता है, लेकिन वो डार्क ग्रे, ब्लैक बन के निकलता है। और उसको इतना मजा आता है उसमें लौटने में, उसमें घुसने में, उसको अपने आप को सानने में। और फिर जब वो पूरा उस कीचड़ में लटपट होता है, उस बदबू से पूरा भरा होता है, तो वो बीच रोड में आता है और ऐसा झाड़ता है अपने आप को। देखा आपने? ये है डुक्कर भाई अपना। बहुत से लोग इस डुक्कर के माफिक जिंदगी जीते हैं, और वो कैसे जीते हैं, जिसको मैं बोलता हूं डुक्कर बिहेवियर, डीबी। डी फॉर डुक्कर, बी फॉर बिहेवियर, डीबी करते हैं बहुत से लोग। और वो क्या करते हैं, वो जाते हैं अपने अतीत के कचरों के डब्बे में कि 20 साल पहले, 15 साल पहले मेरी सास ने मुझे ये डायलॉग मारा था, और उस समय जो मुझे दर्द हुआ था, जो मेरे आंसू निकले थे 20 साल पहले, आज भी मैं वही क्वालिटी के आंसू निकालने की काबिलियत रखती हूं। 15 साल पहले मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे धोखा दिया और इतने लाख रुपए वो गबन कर गया। इतना मुझे दुख हुआ, इतना दुख हुआ, आज भी वो दुख का अनुभव मेरे अंदर जिंदा है। इसको बोलते हैं डुक्कर बिहेवियर, कि अतीत के कचरे के डब्बे में गया इंसान, और वहां जाके इसने लोटा, उस कचरे के अंदर खूब अपने आप को लोटा, बड़ा मजा आया इसको, मेरे साथ कितना बुरा हुआ, और वहां कीचड़ में लोटा, वहां पूरा अपने आप को सान लिया, और फिर वहां से बदबू लेके आया प्रेजेंट में, अपने घर में, अपने बच्चों के सामने, अपने दोस्तों के सामने, और ऐसा कर झाड़ दिया।
पूरी जगह बदबू, गंदगी। और फिर ये आइटम कहता है यार लाइफ में मजा नहीं आ रहा। अरे डुक्कर, जब डुक्कर वाला बिहेवियर करेगा तो कैसे आनंद आएगा? आई एम सॉरी, बट मैं ये सब्जेक्ट जब बोलता हूं तो मुझे सब में आई एम जस्ट नॉट, मैं फिर रुकता नहीं हूं। मुझे लगता है कि क्यों ये इंसान ऐसा करता है। और देखो ना, आप घर में कोई ना कोई डीबी कर रहा होगा, डुक्कर के माफी कोई बैठा होगा कोच में। अरे बाबा हो गई बात, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बाहर आना, क्यों पड़ा हुआ है उसमें? तो मेरा आपसे कहना है कि ये एक जिम्मेदारी की बात है, और वो जिम्मेदारी ये है कि आप सबने अतीत में जाके डुक्कर के माफिक काम करने का नहीं। हाँ, बहुत सी घटनाएं हुई हैं जो हमारे मुताबिक नहीं हुई। हाँ, बहुत से लोगों ने कुछ किया है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप कुछ कर सकते हो क्या? डू यू हैव अ मैकेनिज्म, डू यू हैव अ साइंस, डू यू हैव अ टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा आप पीछे जा सकते हो और वहां जाके उसको ठीक कर सकते हो? कि आप पीछे गए 15 साल पहले, आपने सांस को चमाट लगा दिया और आगे वापस नहीं कर सकते ना। तो जो कर नहीं सकते उस पे फोकस करके कायक दिमाग का दही कर रहे हो यार। वर्तमान में बच्चे भी, तो कुछ घरों में तो पति भी डुक्कर बिहेवियर कर रहा है, पत्नी भी डुक्कर बिहेवियर कर रही है, और वो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे डुक्कर, वो भी कहते हैं हम भी ऐसे करेंगे। तो डुक्करों का खानदान हो गया है। चालू क्या है? तो अगर आप हस्बैंड वाइफ ये मिलकर देख रहे हो, तो आज के बाद अगर आपके हस्बैंड ने ऐसा किया तो आप बोलना डीबी बंद करना बाबा। और अगर आपकी वाइफ कर रही है तो आप वाइफ को बोलो डीबी बंद कर। आई एम श्योर बाकी कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ डीबी बोलने से यू विल बी आउट ऑफ इट। आई थिंक लाइफ में आपने कुछ सीखा, नहीं सीखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट को आपने पकड़ लिया, ये 2 शब्द पकड़ लिए, डुक्कर बिहेवियर पकड़ लिया, बस लाइफ सॉर्टेड है फॉर सो मेनी ऑफ यू। तो मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं मालूम यार, लेकिन मुझे ये जिंदगी जीना आता है तो मैं जी लेता हूं ऐसे चीजों के द्वारा। तो ये सिंपल तरीके से अगर बात पकड़ में आ गई तो उसके आसपास बहुत ऐसा कुछ फ्लैम्बॉयंसी नहीं है, कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। होल्ड ऑन टू दिस कॉन्सेप्ट एंड मेक योर लाइफ अ लाइफ वर्दी ऑफ लिविंग, बिकॉज एज मेंबर्स ऑफ दिस फोरम एक जवाबदारी है, एक जिम्मेदारी है। तो आप जब भी मुझे मिलें, कभी हम टकराएं, कभी कोई और टकराए आपकी लाइफ में, तो उस टकराने में एक खुशबू होनी चाहिए, और वो खुशबू होती है कि हम महक रहे हैं। महक इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर खुशी है, और अंदर खुशी मतलब क्या है? हम उन स्टेशनों में ज्यादा जाते हैं जहां पर हमारे साथ अच्छा हुआ है। क्योंकि अतीत में जाने का कारण क्या है? 2 ही कारण है पास्ट में जाने के लिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ओनली 2 reasons why you should go to your past. 1, you are going to some good stations, some good places. कुछ अच्छे बगीचों में जा रहे हैं जहां पर अच्छे फूल खिले हैं, बचपन की कुछ मेमोरीज, कुछ स्कूल में अवार्ड मिला, कुछ माँ बाप के साथ समय बिताया, कुछ बच्चे छोटे थे उनके साथ समय बिताया, और आप उन मेमोरीज के पास जा रहे हो, और वो आपके बगीचे हैं, वो आपके गार्डन्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे फूल खिले हुए। आप वहां गए 5 मिनट 10 मिनट, आपने आंखें बंद करी, थोड़े आंसू टपके आपके उन यादों को लेके, दुख में नहीं खुशी के आंसू निकले, और आप प्रेजेंट में आए वो खुशबू लेके। That's one reason why you should go to your past. And the second reason why you should go to your past is कि आप पास्ट में गए और आपके साथ कुछ बुरा हुआ, और आपने उस सिचुएशन को समझा और कहा ये बुरा क्यों हुआ मेरे साथ, और आपने उसमें से कुछ सीख, कुछ समझ निकाल ली, और आप वो समझ से वाइज बन के वर्तमान में आ गए। That's it. There is no third reason why you should go to your past. और कोई कारण नहीं। So your mistakes of the past, your hurt of the past, the way people treated you in the past, वो आपके learning zones हैं। जैसे learning zone का मतलब क्या है? उसमें से आप जूस निकाल लो। जूस का मतलब क्या है? अभी एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा एग्जांपल, कि आपने अगर संतरे का जूस निकालना है तो व्हाट डू यू डू? आपके पास वो पुराने जमाने का अगर जूसर है तो आप डालते हो संतरा ऊपर से और ऐसा घुमाते हो और जूस निकलता है एक कोने से। तो वहां आप क्या रखते हो? ग्लास रखते हो, राइट? एक सुंदर सा एक वेसल रखते हो जिसमें आप जूस को रखो, जूस को कलेक्ट कर पाओ, और जहां से उसका पल्प निकलता है वहां क्या सुंदर सा वेसल रखते हो? क्या सजा के बहुत बढ़िया सा वेसल रखते हो? नहीं, वहां आप एक प्लेट रख देते हो, वहां गंदी सी कोई प्लेट रख देते हो, या एक कचरे का डब्बा रख देते हो, या एक पॉलिथीन रख देते हो जिसमें आप उसका वो कचरा या वो पल्प जो उसका वेस्ट आ रहा है वो आप संभाल के वो आप रखते हो, राइट? और फिर उस पल्प को क्या करते हो? उस वेस्ट को आप फेंक देते हो।
Am I able to connect with you? तो आप जूस पी लेते हो संतरे का और पल्प को आप फेंक देते हो. Have you ever seen somebody कि जिसने जूस को तो छुआ नहीं, पल्प को लेके बैठा हुआ लाइफ लॉन्ग कि देख मेरा पल्प, मेरा कचरा, मेरा कचरा. And that is what many people are doing. When they go to the past, they hang on to that incident. अरे छोड़ना उस इंसिडेंट को, कचरा है वो, उसको निकाल खट जूस निकाल, उसका पी, ताकतवर बन. वो इंसिडेंट should make you strong. It should not make you weak. हर इंसिडेंट में ताकत होती है हमें अच्छा बनाने की, और उसमें ताकत भी होती है हमें कमजोर बनाने की. अनजाने में हम कमजोर बन के आ रहे हैं, हम दुर्बल बन के आ रहे हैं. Let us take the juice out, drink it and throw that kachra for the rest of our life. उन मेमोरीज को निकाल दो, और जब तक उसका जूस नहीं निकालोगे तब तक वो पुरानी मेमोरीज आपको तंग करती रहेंगी, ये बात पक्की. So I hope you're there with me on this. So your past mistakes, your past situations which did not go your way are situations which can make you strong. Provided you drink the juice, you drink the crux of those situations. And I can bet the best of lessons, मैं जो बोल रहा हूं ये आप भूल जाओगे, लेकिन जो आपने पास्ट में जाके सीखा वो आप कभी नहीं भूलोगे अगर आपने सीख लिया तो. The past is the greatest teacher which you can ever have in your life. लेकिन हम उसको टीचर नहीं मानते, हम आसपास के लोग जो हमें सिखाने को तैयार बैठे हैं या हम जिनसे सीखते हैं उनको हम सबसे बड़ा टीचर मानते हैं. More than any teacher outside, your past is one of the most powerful teachers. So every day go to your past. मेरा एक ऐप है लाइफ लीडरशिप ऐप, उसमें मैंने एक बड़ा अच्छा दिया है क्योंकि वो मेरी लाइफ का एक व्हाट आई डू डेली, उसको मैंने एक ऐप के रूप में कैप्चर करके मैंने ऐप बनाया है, बहुत बढ़िया. तो उसमें हर रात को मैं 3 सवाल पूछता हूं अपने आप से. हर रात को 3 सवाल सुबह पूछता हूं, 3 सवाल रात को पूछता हूं. कितने सालों से मैं वो सवाल पूछते आ रहा हूं और उन सवालों को एंट्री करते आ रहा हूं. सो आई आस्क 3 क्वेश्चंस इन नाइट एंड द क्वेश्चंस आर, व्हाट डिड आई डू ग्रेट टुडे? आज मैंने अच्छा क्या किया? आई डू एन ऑडिट ऑफ माय डे. आई फील सो ग्रेट व्हेन आई फील अच्छा, ये अच्छा हो गया, कमाल है यार. और मुझे बस दिन में एक ही काम अच्छा करना है टू फील गुड. मैं थोड़ा ना भगवान हूं कि दिन में 10 काम मुझे अच्छे करने हैं, बस एक काम बढ़िया करना है मुझे. वो मेरा रोज का रिकॉर्ड रहता है कि आज तो एक काम बढ़िया करना है. और हर दिन अगर एक काम अच्छा कर लिया, 365 दिन 365 अच्छे काम, फिर मुझे कौन रोक सकता है कॉन्फिडेंट फील करने से? मुझे कौन रोक सकता है अच्छा फील करने से? फिर मुझे किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से इंटिमिडेट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं अपनी लाइफ का राजा हूं ना. तो हर दिन एक काम बहुत बखूबी करता हूं और वो लिखता हूं. सेकंड मेरा क्वेश्चन होता है, व्हाट आई कुड हैव डन बेटर टुडे? आज मैं अच्छा क्या कर सकता था? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो चूक गया होगा ना आज. एक गलती रोज पकड़ लेता हूं, एक गलती रोज पकड़ लेता हूं, उसका जूस उसी दिन निकाल लिया, कटाक. फिर सोचना नहीं कि पास में क्या करना है, उसको जूस निकाल के वहीं फेंक देने का, पास में जाने का नहीं, उसको देने का, और रोज रात को वो जूस पी लेने का. एंड थर्ड क्वेश्चन आई आस्क, व्हाट वाज आई हैप्पी अबाउट टुडे? आज किस चीज को लेके मैं खुश था, उसको पकड़ के बैठ जाता हूं. ये 3 सवाल मैं रोज करता हूं रात को सोने से पहले और सुबह उठने से पहले. 3 सवाल हैं, वो अभी कभी बाद में बताऊंगा आपको. सो आई एम जस्ट सेइंग, ये जिम्मेदारी की बात है कि आप जितने बड़े बनते हो, जितने आप काबिल बनते हो, जितना आप आगे बढ़ने की चाहत रखते हो, उतना जिम्मेदारी भी आती है. तो मोर देन यू आस्किंग गॉड मेक मी बेटर देन व्हाट आई एम सेइंग, आस्क गॉड मेक मी स्ट्रॉन्गर टू टेक इन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. God make me powerful to handle bigger responsibilities. The moment you ask God this, you will see that the pathway to growth is going to be clear for you. ऑफिस में देखता हूँ कलीग्स को, अब देखता हूँ मैं ऑर्गेनाइजेशंस में इतने एंटरप्रेन्योर से मैं बात करता हूँ और मैं देखता हूँ कि वहां पर जो है दे आस्क फॉर पोजीशंस कि मुझे प्रमोशन कब मिलेगा, मुझे हायर सैलरी कब मिलेगी, जो हक है उनका मांगना चाहिए. बट आप उतने ही एक्साइटमेंट से, इफ यू कैन आस्क योर बॉस, boss, can you give me more responsibilities? Boss, this year what bigger responsibilities do I need to handle? देखो फिर कौन रोक सकता है तुम्हें ग्रोथ से. The way you are asking for positions with double the excitement, ask for responsibilities. तो फिर the world is open for you to grow. क्योंकि जिसने जिम्मेदारी पकड़ ली
वो राजा जिसकी कुर्सी है वो राजा नहीं, जिसने जिम्मेदारी पकड़ ली वो। सो कहने को तो बहुत कुछ है आप लोगों के साथ, लेकिन टाइम की लिमिटेशन है, एंड my 35 minutes are over. Just want to share with you, and then we'll have some question and answers. If you have any questions for me, maybe we'll have around 5-10 minutes for the questions. But before we go to the question side, I want to share something with you. तो मैंने कहा आपसे भी share कर लूं. I want to share with you something about my forum, which is there. And if it makes sense to you, would like to invite you. We have an entrepreneurial forum called the Chrysalis Entrepreneurial Forum, which is a lot different than your forum. Your forum has, and our forum also has a very powerful vision, mission, which we have with है कि क्या हम मिलके as entrepreneurs can we make a dent, can we make a contribution of 2% to the GDP of this country? क्या इस देश की GDP में हम 2% contribution दे सकते हैं by we doing our businesses in a much better way? So अभी हमारे पास 300 करीब entrepreneurs हैं which we meet. तो पहले हम लोग offline मिलते थे, तो offline मिलते थे तो we would have speakers like Anu Aga coming over. We had Venkatesh Iyer of Goli Vada Pav. We had Mr. Pramod Chaudhary of Paraj. We had Yatin, we had Sandeep Vaslekar, one of the world's best known strategists, global strategist. We would have, Yatin Shah from Sholapur, 1,000 crore company into camshafts. We have Thairuk Air ke aaye the, Velumani, who was there. We have had awesome meets, but abhi online ho gaya hai. So online maybe we have speakers coming from outside. So we have Samir Kelkal from Aurangabad. He's exporting awesome machines to China and Germany. जहां दुनिया में जर्मनी की बात करते हैं in terms of technology, here is one company, Grindmasters, which is importing machines and world-class machines. They are next to Japan now in machines. Rohit Gera came in from Pune, Ajay Mehta, Deepak Fertilizer Nitrate के जो director वो आए थे, Sanjay Godawat from Kolhapur, Ajay Naik, he joined us from Sweden. He is one amazing, awesome story कि कैसे 35 years में from an ordinary engineer moving on to becoming the head of SKF worldwide. तो सारे गोरों को ये लीड कर रहे हैं. एक बहुत अच्छी अमेजिंग स्टोरी थी जो हमने सुनी. अतुल चोरिया, ऑफ कोर्स, फ्रॉम पंचुअल रियलिटी, हाउ ही क्रिएटेड an organization where the rental income is so huge than what you can ever imagine. Panimal had joined in from Singapore, Kishore Desai of Kishore Pumps, and many more people who had come in over the last so many years. So ये forum है, and I feel if you want to be a part of it, the benefits to it, you would listen to some awesome, influential entrepreneurs from various industries. You can get a chance to Q&A with stalwarts. A lot of questions are asked by our forum members. जिनसे मिल नहीं सकते, जिनसे आप directly बात नहीं कर सकते, उनसे question answer का एक मौका मिल सकता है. And then I have my own sessions, which I take beautiful insights from my side on business, month after month after month. And of course, you build a network with 300 plus entrepreneurs who are aligned in. So it is not about entrepreneurs. It is people who know business, people who do business in a certain way, people who are growing their businesses, people who have been trained by me. Unka hissa aap ban sakte ho. And they have awesome ways of doing business. And of course, the last and the least important amongst these 4 points is you get a lot of business opportunities there. But that's not the reason why I would promote this. So it is there if you want to be there. It's a yearly membership of 12,500. I've made it open this year because it's online. पहले online नहीं था, तो we would only restrict it to a few members who are there. But अभी online है, so people from all over the India are now being a part of this forum. So I just thought I'll share this with you. And it's a business forum. That's why there's a fees to it, right? People want to make money. People will make money. People will grow business. So that is why we have a charge for it. Anything offered for free is not valid for, especially for business. That is for sure. And उसके अलावा there is something called Happy Minds, जो मैं पिछले 23 साल से कर रहा हूँ. This is without any charge. This is free. And because of online, ये भी हमने open किया है for the last 1 year or so for people. So every Saturday morning at 7 o'clock, we have hundreds who join me in the morning. So this is an open invitation to all of you if you want to be there. And if you want to keep on upgrading yourself, keep on getting some pointers the way you got today. Every Saturday, आप आइए with family, with your relatives from all over. कहीं से भी आ सकते हैं. They can join. And it's free. So there's no charge for it. So that's what I wanted to share with you. मेरा काम है शेयरिंग करना, आपका काम है उसमें एक्शन लेना, नहीं लेना वो आपके ऊपर है. But would be happy to have you there if you're there. चलिए, let's have some questions. If you have any. questions syllabus से पूछना. Yes. अच्छा, आप कल के HM में थे, दिनेश राठी. Okay, yes. हाँ जी. हाँ, पद्मा. Yes, first on behalf of MPF West, I would like to really thank you. And everybody, you can see in the chat box, people are live and very much with you.
everybody is loving the concept of DD is the best thing, जो कभी कोई नहीं भूलेगा, and that orange juice thing. And lot of people have written, summaries in all our groups that whatever you have spoken about. And first question from my side, as you spoke about जी. the past and the future, how do we, take efforts to be in present? Because we should be in present. So we really need to take little Okay, efforts. I to do just that. lost your voice. Let me Should I okay, repeat let me it? just rephrase. No, I'll repeat. If there's something different, then you correct me on there. So the question is, how do we stay more in the present? Right. That's the question. Yes. Okay. Now, see, you cannot choose to be in the present because you are in the present. We don't realize that we are in the present. हम तो प्रेजेंट में ही हैं. अभी आप और मैं प्रेजेंट में ही बात कर रहे हैं. लेकिन कभी जैसे हम रियलाइज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ देम आर लिसनिंग टू मी, सो दे आर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली, दे आर इन द प्रेजेंट. बट सम मे बी देयर लाइक मुंगेरी लाल कहीं खोए होंगे. सो नाउ इन द प्रेजेंट यू चूज टू गो आउटसाइड. So you cannot choose to be in the present. You are already in the present. You choose to go outside to the past or to the future. So what you got to do is my voice clear? Yes. Is my net connection okay? Yeah, we are okay. Yes, We sir. can hear it. You can hear me? Okay. I just got this. Okay, आपका connection unstable हो रहा है. Okay, so we can only choose to stop going to the past and stop going to the future. So how do you stay in the present? Stop going here and there. For that, what do? Involve yourself more into activities, actions. Actions can never be a part of your past. Actions can never be a part of your future. Action can only be in the present. But ये एक बोलते हैं कि this is going to be absolutely an ultimate ideal situation होगी कि हम हमेशा प्रेजेंट में रहें. लेकिन मन है तो मन का तो अपना रोल है, वो हमें ले जाता है पास्ट में, फ्यूचर में. तो हमने एक you have to ask yourself at the end of every day that how much of my time was I in the present? How much of my time was I involved in doing certain things? So I think the best way to be in the present is get involved in any situation. That's why I asked you to type something. आप type करो. So more than me wanting a response from you, I wanted you to stay with me. क्योंकि आप action कर रहे हो ना, so you can't be in the past and do action here. You can't be in the future and do action here. So you're doing action, you are in the present. तो जितना हो सके आप present में रहोगे, तो action करोगे, उतना आप present में रहोगे. Right? Second is, when you are there in any situation, ask, what's important for me? Suppose you are at home and keep yourself focused on why you are at home. So you're at home because maybe you got to spend time with family. Suppose I'm just assuming this. अभी तो lockdown है तो और option नहीं है अपने पास. लेकिन आप lockdown के अलावा आप घर आते हो शाम को. So what is the objective of coming home? Objective is to let go of office. Objective is to let go of things outside and be at home. Get involved. So don't just come and sink in the couch. Don't just come and sit there. So kuch get involved. Maybe, get involved in the kitchen. Maybe get involved with the kids. Maybe get involved with playing with them. Maybe get involved with something. कोई चीज खराब हो गई उसको ठीक करा दो. So you are involved and you are in the present. जाना है future में, take a specific time. Okay, 1 hour, I'm going to think and plan about my future. Past में जाना है, okay, I'll sit for half an hour and go to the past and come back with some wonderful memories. Right? ये और बीच में आना जाना हल्का होगा, but the more conscious you are, the more you will stay in the present. Thank you. हाँ जी. और किसी का सवाल है? There's a question. How to make mind balancing in such pandemic? Sorry, come again. How to make this mind how to keep this mind in balance more in such a pandemic? It's questioned by one of our members here. Now, in this situation, you बहुत अच्छा question है और बहुत जरूरी इसका आंसर है आप लोगों के लिए, बहुत जरूरी है समझना ये. Now, in this situation, जो हम जिससे गुजर रहे हैं, पैंडेमिक को वैसा मत समझो आप कि ये है पैंडेमिक कि ये नेशनल लेवल पे हो रहा है. पैंडेमिक को समझो आप कि ये हमारे पर्सनल लेवल पे आ चुका है. And all of us, we are suffering. So some are suffering business wise, some have suffered relationship wise, and some have suffered personal
लॉस वाइज। तो हम सब ने किसी न किसी रूप में कुछ लॉस सहा है। तो ऐसे में क्या करना है, 2 things, and I call it as a 2G formula. 2G, ये वो कोलगेट घोटाला वाला चक्कर नहीं है, 2G 3G वाला। ये 2G फॉर्मूला क्या है? 1G is called grief, sorrow, grief बोलते हैं। 2nd G is called gratitude। तो आपके लाइफ में जो हुआ है, या आप जो सुन रहे हो, या आपके दोस्तों की खबर आ रही है, परिवार के रिश्तों की खबर आ रही है, तो वो एक ग्रीफ पैदा कर रहा है अंदर से, एक दुख, एक सौरो पैदा कर रहा है। नाउ दिस हैज द पावर टू इनगल्फ यू, क्योंकि इतना सुनने में आ रहा है, इतना सुनने में आ रहा है, इसकी ताकत है कि हमें कवर कर ले, इनगल्फ कर ले, हमें दबा दे। तो इसको आपने ध्यान में रखना है कि इट शुड नॉट engulf you, it should not overpower everything, but I'm not saying ignore it. So how do you keep it aside? You have the other G with you called gratitude. कुछ तो लाइफ में अच्छा हो रहा है ना, कुछ तो अच्छा हो रहा है लाइफ में, कैन वी होल्ड ऑन टू दैट? कुछ तो है हमारी लाइफ में जो अच्छा हुआ है। तो ग्रेटिट्यूड इज नथिंग एल्स बट एक्नॉलेजमेंट, एक रिकग्निशन है हमारी लाइफ में क्या अच्छा हुआ है, एक्नॉलेजमेंट है उस बात का कि क्या अच्छा चल रहा है। अच्छा ये नुकसान हो गया लेकिन ये तो है, राइट? इफ यू वांट टू एक्नॉलेज दैट, यू विल फील ग्रेटफुल टू गॉड कि यार भगवान ये तो है। आई टेल यू अ स्टोरी ऑफ, मैंने अभी शेयर करी थी कुछ दिन पहले, अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ बुद्धा, एंड देन वी विल वाइंड अप दिस। द स्टोरी इज वेयर गौतम बुद्ध के एक शिष्य जो है आनंदा, उनकी साधना पूरी होगी, उनकी पूरी एजुकेशन पूरी होगी अंडर गौतम बुद्ध। सो ही सेज, भगवान मैं अब जाता हूं और मैं अभी आपका संदेश और जगह पहुंचाता हूं जहां पर नहीं पहुंचा है, बहुत से लोग आपके संदेश सुनने से वंचित हो गए, तो लेट मी गो एंड स्प्रेड योर मैसेज। तो गौतम बुद्ध कहते तू कहां जाएगा? तो वो कहते एक जगह है बिहार में जिसका नाम है सूखा, वहां पर कोई नहीं गया है, मैं वहां जाके आपका संदेश दूंगा। तो भगवान बोलते कि भाई तू वहां मत जा, क्योंकि वहां आज तक कोई नहीं जा पाया है। तो वो कहते तभी तो जाना चाहता हूं क्योंकि आज तक कोई नहीं गया है। तो भगवान बोलते हैं कि तुमको मालूम है वहां क्यों नहीं गया आज तक कोई? क्योंकि वहां के लोग अच्छे नहीं है। तो बोलता अच्छे नहीं है मतलब? कहते वहां तू जाएगा, लोग तुझे कुछ भी भला बुरा बोलेंगे, गाली देंगे, तेरे को कोसेंगे, तू क्यों जाना चाहता है? तो वो उनके शिष्य बोलते हैं कि मैं वहां जाऊंगा, और अगर मुझे वो कोसेंगे, मुझे गाली देंगे, मुझे भला बुरा कहेंगे, तो ठीक है ना, अच्छी बात है, कम से कम पीटेंगे तो नहीं, कम से कम मारेंगे तो नहीं मुझे, तो मेरी पिटाई हो जाए उससे अच्छा है कि मुझे भला बुरा बोल लें। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं अच्छा, लेकिन अगर किसी ने तेरे को पीट दिया, किसी ने तेरी कुटाई कर दी, तो कहते हैं फिर भी मैं खुश होऊंगा कि कम से कम उन्होंने मेरी जान तो नहीं ली, मुझे पीटा, मुझे भला बुरा बोला, लेकिन कम से कम मेरी जान तो नहीं ली। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं अगर किसी ने तेरी जान ही ले ली फिर क्या करेगा? तो बोलेगा, वो बोलते हैं मैं फिर भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस शरीर से मुक्त कराया जिसके द्वारा मैं कुछ गलती कर सकता था। तो जब ऐसा वो बोलते हैं तो गौतम बुद्ध बोलते हैं तेरे अंदर अभी कोई कांटा नहीं है, तेरे अंदर अभी कुछ बुरा नहीं है, तू जा अभी दुनिया में किसी भी कोने में चले जा, तू वहां जाके अच्छाई फैलाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है आपसे कि ग्रेटिट्यूड इज ऑल अबाउट रिकॉग्नाइजिंग, एक्सेप्टिंग दैट लॉर्ड इज गुड इन अस। अच्छा ये नहीं हुआ तो कम से कम ये तो है, अच्छा अरे ये बिजनेस नहीं हुआ, कम से कम बिजनेस तो है, अरे कहीं नहीं गए, कम से कम परिवार तो है। रिकॉग्नाइजिंग व्हाट इज देयर विद यू, ये रिकॉग्नाइज करना बड़ा जरूरी है ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम्स। और जो ग्रीफ है उस ग्रीफ को बैलेंस करने के लिए ग्रेटिट्यूड, तो जैसे रोप वॉक करता ना एक आदमी, तो उसके हाथ में डंडा होता है और वो रस्सी पे चल रहा है, ही इज अ रोप वॉकर। तो उस डंडे से एक कोने में ग्रीफ, एक कोने में ग्रेटिट्यूड, ऐसा बैलेंस करके हमें चलते रहना है। क्योंकि अगर ग्रेटिट्यूड नहीं है, ये ग्रीफ हमें पूरा उदास बना देगा, और अगर ग्रीफ नहीं है, ये दुख नहीं है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड है, तो ये हमें खोखला बना देगा, हमें समझ हमारी गहरी नहीं होती। हमारी समझ हमेशा हमारे दुखों से आई है, हमारे दुख हमारी जिंदगी के अंदर एक गहराई डालते हैं, एक फाउंडेशन डालते हैं। इसलिए जब आदमी दुख के बाद हंसता है ना, तो उसकी हंसी में बड़ा दम होता है। जिसकी लाइफ में दुख नहीं और वो हंसता है, तो उसकी हंसी में ज्यादा ताकत नहीं होती। जो दुख के बावजूद भी हंस सकता है, उसमें कोई बात है। तो दुख हमें गहराई देता है जिंदगी की। तो ये दोनों को बैलेंस हमें करना है।
Great answer. Can we have just one more last question? देखो अच्छा ठीक है, अभी अगले A क्वेश्चन quick one. इसके बाद से This is the last one. Can a person change his basic core behavior, either attitude, as this is acquired by him through his childhood environment and surroundings? Okay. Can a person change his basic core attitude or approach which he has acquired over the years? Yes, he can. Because आपने अब बोला ना आपके क्वेश्चन में, he has acquired. He was not born. तो जो जिससे हम बॉर्न हुए हैं उसको चेंज नहीं कर सकते. हमारा जेनेटिक मेकअप, हमारा हाइट, बॉडी, कलर वलर, ये हम चेंज नहीं कर सकते. लेकिन जो एक्वायर किया है, तो वर्ड एक्वायर ही बोल रहा है कि भाई एक्वायर किया है, तो फिर ये तो हट ही सकता है ना. लेकिन जितना पुराना एक्वायर किया है उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको हटाने में. दैट इज व्हाट माय आंसर वुड बी, दैट इट इज एक्वायर्ड, सो इट कैन डेफिनेटली बी चेंज्ड. बट इट, वो जो एक्वायर किया है, आपने एक दिन में एक्वायर नहीं किया, आपने सालों साल एक्वायर किया, सालों साल. तो अगर आपको किसी ने सालों साल बोला है तेरे ये बस की बात नहीं है, अरे छोड़ना, तू कैसे सोच सकता है इतना बड़ा करने की. तूने कभी चेहरे पे आईने में चेहरा देखा है कि कभी? ऐसा हमने बार बार सुना है, बार बार सुना है, हजारों बार सुना है, और उस पे से हमने एक एटीट्यूड डेवलप किया है कि मेरे से कोई बड़ा काम नहीं हो पाएगा. तो उस एटीट्यूड को चेंज करना के लिए पहला बिलीफ कि चेंज हो सकता है, दूसरा कि जितनी बार हमने सुना है उसका 1/10 बार तो एफर्ट डालें उसको चेंज करने के लिए. प्रॉब्लम क्या होता है, वी वांटेड टू बी चेंज्ड थ्रू वन थॉट, वी वांटेड टू बी चेंज्ड थ्रू वन वर्कशॉप, वी वांटेड टू बी चेंज्ड थ्रू वन बुक रीडिंग. ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो वन वर्कशॉप से, वन बुक रीडिंग से, वन थॉट से तो आया नहीं ना. तो जितनी मेहनत से वो आया है उसके 1/10 मेहनत तो डालो उसको निकालने में. और मैं आपको विश्वास से बोलता हूं वो जा सकता है. मैं 23-24 साल की उम्र तक, जब तक मैं इवन इनफैक्ट 25 साल की उम्र तक, आई हैड नेवर बीन ऑन स्टेज, आई हैड नेवर स्पोकन टू एनीबॉडी, and never, I always dreaded going on stage and talking to people. तो वो 24 साल जो मैंने एक्वायर किया उसको अंडू करने में अभी बाकी के 25 साल लगा दी, right? And that's what is the possibility. ठीक है? So thank you very much. Take a great year for yourself and take pride in being a part of this wonderful forum of yours. Yeah, this is your West Pune forum, and आप ये मैसेज भेज, जिन लोग आज नहीं थे उनको रिकॉर्डिंग मत भेजना, उनकी सजा है. We already have messages here. Please share the recordings. We have wonderful compliments for you in the chat box. We are super happy, and it was an amazing session. Thank you so much. Thank you. God bless you all. God bless you all. Thank you so much. Thank you. God bless you. Over to you, admin. Hope everybody enjoyed this session for the question answers and the power pack talk by Manish Ji Gupta. Now it's time for the last lucky draw round. So I give it over to Shravan Ji Biyani, who will announce the winners for the third round. Congratulations to the winners. So आज तो बहुत सारे गिफ्ट बटे हैं यहाँ पे. Now I invite the director of today's program to propose the vote of thanks, Architect Kishore Ji Bhansali. जय श्री कृष्ण, जय महेश. खुश नसीब है हम जो आप सभी बने हमारे मेहमान
आज आप इधर आने से बड़े हैं हमारी एमपीएफ की शान। I deem it a great honor and privilege to propose a vote of thanks on this memorable occasion. मैं सबसे पहले congratulate करना चाहता हूँ new board of director team of MPF West Chapter 2022. My heartful thanks to a dignitary from MFCT trustee, governing council members, chapter guardians, our past and present president and office bearer team for their valuable contribution. I extend my sincere thanks to spiritual guru B.K. Sulbadidi from Brahma Kumari Center, Pune, and Mr. Manish Gupta, a founder of Chrysalis, Pune, for enlightening us with the roles and responsibilities with balancing life in today's environment. आपसे जो ज्ञान और अनुभव पाया, जरूर उसे हम निभा सके, अपेक्षाओं को ध्यान रखते हुए कर्तव्य के सामने शीश झुका सके. Now my heartful thanks to today's Ashirwad Samaro chairman, Architect Anup Kabra and Sneha Kabra for their support and planning. And extend my thanks to my better half, Architect Mamta Bhansali. I sincerely thank you to IT Director Sandeep Ji Jaju to drive event virtually with mix of softwares in collaborating with innovative ideas by chairman. Now my heartful thanks to CA Govindji Chandal, Kishorji Karwa, Rajeshji Malani, Gauravji Bhansali for connecting with today's speaker and coordination with their team. And thanks to entire Ashirwad committee members and friends who distribute work of calling, gift distribution, and all good hearts who work behind the screen and making this Ashirwad Samaro a resounding success. I thank you to Master of Ceremony Padmaji Lohia and Nidhiji Biani for their kind anchoring, who also helped us for shooting and recording. Finally, I leave you with this inspirational quote: ना संघर्ष न तकलीफें, ना संघर्ष न तकलीफें, क्या है मजा फिर जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, जब लक्ष्य रहेगा सीने में. तो चलिए हम सभी ये लक्ष्य रखते हैं कि जल्द ही ये तूफान थम जाए और हम सब फिजिकली मिल पाए. स्टे होम, स्टे सेफ, टेक वैक्सीनेशन. थैंक यू. जय महेश. I request everyone to rise for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव सुगंध मागे. गाए तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय 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 हे. Thank you everyone to be part of this wonderful Ashirwad Samaroh on a Sunday morning. Going ahead quickly, I would like to introduce and I would like to call all our BOD live today. So first, Engineer Nileshi Lakhotia, who's the president for year 2022. Can we have Nileshi Lakhotia on stage, on the screen? Yes, Nilesh Bhaiya.
Congratulations. Next, Thank you very much. Next, I call upon President-elect and Membership Development Officer or Architect Kishorji Bhansali, who was also Director for this program today. Kishore Bhai, can we see you? Great. Congratulations. Ashirwad Samaroh, Chairman, Architect Anup Ji Kabra. Thank you. Thank you very much. Secretary, Architect Neetaji Doot. I guess there are a lot of architects, one after the other. Congratulations, Neetaji. Next, we have Treasurer CA Lakshmikant Ji Manyar. CA Lakshmikant Ji Manyar. Thank you. Immediate past President CA Dinesh Ji Mundra. My video is stopped by the host. Wैसे we all know you very well now. Okay. Thank you. Thank you very much. Yes, here we can see Dinesh Bhaiya. Now it's for our BODs. For Joy of Life, we have Mrs. Ekta Sabu. Yes, we can see Ekta. Thank you. Next, we have for Gift of Education, Engineer Amit Ji Rathi. Thank you. Thank you very much. Mahesh Idol, Mr. Jay Ji Jaju. Jai Mahesh. Jai Shri Krishna. Congratulations. Then picnic के लिए Mr. Ajay Ji Toshniwal. Jai Shri Krishna. Jai Mahesh. Yes. Jai Mahesh, Jai Shri Krishna. Congratulations, Priya. Thank you. Battle of Profession, Mr. Sagar Ji Karwa. It's Battle of Professions, I'm sorry. Sagar Ji Karwa. सागर जी करवा बेबी में बिजी होंगे अभी. Okay, ठीक है. We move on to the next one. Digital and Business Connect, Engineer Sandeep Ji Jaju. Yeah, working hard since more than a week's time, setting up all the connections right here for today's presentation. Next, we have President's Choice Program, Dr. Poonam Rathi. Yes, we can see Poonam here. Congratulations. Thank you. Next, Public Relations, CA Dinesh Ji Rathi. Thank you. My video, I think, is blocked. The Yes, admin yes. क्या Now कर it's- रहे हैं अभी? हो गया, हो गया. Thank you. Thank you. Thanks a lot. दीपावली मिलन, Mrs. सीमा जी भंसाली. Also for सीमा जी, आज जो हमने BOD का इंट्रोडक्शन पढ़ा, it was written by सीमा जी and her creativity was superb. Thank you, Palma Bhabhi. Congratulations. Next for Mahesh Gaurav, Engineer Sunil Ji Kasat. Jai Shri Krishna, thank you. Can we see Sunil Ji Kasat? Yes. Congratulations, Sunil Ji. 54 जन ही बचे हैं. कितने जन बचे? Jai Shri Krishna, thank you. For Samvid,
we have engineer Shamji Bhutra. अभी तुझको ध्यान में आ रहा है क्या? ध्यान में अभी करूंगी क्या? Shamji Bhutra, congratulations भैया. जय श्री कृष्णा. I feel so happy to see everyone today. Okay, so here we are done with introduction of all the members of the BOD, and we conclude the Ashirvad Samaroh. Over to admin. Hope everybody Thank you.